دشمن مصطفیٰ سے یہ کہہ دو خیر چاہے تو ہم سے نہ الجھے، کیوں ہم غلامان احمد رضا ہیں، کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں۔ ہاں بولیے۔ ہاں تو جیسے میں یہ کہہ رہا تھا جی بولیے۔ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی میں سفارش کروں گا، شہداء بھی سفارش کریں گے، اولیاء بھی سفارش کریں گے، اور جو آپ کے رشتہ دار احباب اگر جنت میں جا رہے ہوں گے، آپ سے کسی کو وضو کا اگر پانی بھی دے دیا ہے تو وہ بھی آخرت میں سفارش کریں گے۔ آخرت میں کرے گا۔ آپ سنیے نا، سنیے آپ اس بات پہ ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ جو ہے ڈائریکٹ بخشنے میں قادر ہے، وہ بخش سکتا ہے، لیکن اپنے نیک بندوں کے وسیلے کے ذریعے سے، میری بات سنیں، ان کے سفارش کے ذریعے سے آپ کو بخش رہا ہے تو، اور ان کے وسیلے کے ذریعے سے بخش رہا ہے نا، تو یہ وسیلہ ہوا کہ نہیں، اور بعد وفات یعنی جب کچھ بھی نہیں رہے گا تب، سمجھ گئے؟ تو اس میں وسیلہ ناجائز، بدعت یا حرام یا یہ سب کہاں سے؟ میں نے حرام بدعت ناجائز میں نے کچھ نہیں کہا، میں یہ بتائیے مجھے کچھ نہیں کہا، لوگ کہتے ہیں آپ نے نہیں کہا، لیکن غلط کہاں سے آ گیا کہ مطلب نہیں لینا چاہیے؟ لیکن یہ صحیح بھی تو نہیں ہو سکتا نا محترم، یہ صحیح بھی تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر دیکھیے نبی نے ہگنے کا، مچنے کا، میں نے ہر چیز کا طریقہ بتایا، یہاں تک انہوں نے کہا کہ بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ، تو یہ کیوں بھول گئے بتانا کہ تم میرے وسیلے سے مانگو گے تو ہی ملے گا؟ کیونکہ ایک بھی حدیث نہیں ملتی نبی کی ایسی۔ کر رہے ہیں آپ، پھر کر رہے ہیں، ایک طرف کو مان رہے ہیں میدان محشر میں وسیلے سے میں بخشا جاؤں گا، اور پھر انکار کر رہے ہیں۔ نہیں آپ مان لیجئے کہ ہاں وسیلہ ہے میدان محشر میں، بے شک وسیلہ ہے، بے شک وسیلہ ہے، نبی بے شک سفارش کریں گے، وہ میدان محشر، وہ آخرت کی زندگی ہے، وہ آخرت کی بات چھوڑ دی، دنیا میں بتائیے مجھے۔ تو دنیا میں کیا بتائیں؟ تو دنیا میں آپ بتائیں گے نا کہ میں نے، نبی نے کہا ہو کہ بھائی میرے نام سے ہی مانگو گے تو ملے گا، میرے نام سے ہی مانگو گے تو ملے گا، یہ کون سی؟ میرا وسیلہ لگاؤ گے، یعنی میرا وسیلہ لگاؤ گے تبھی ملے گا، وہی میں نے کہنے کا مطلب، میرے وسیلے سے مانگو گے تو ہی ملے گا۔ نبی کی یہ حدیث تو مجھے کہیں نہیں ملتی۔ چلیے ٹھیک، آپ نے یہ مان لیا کہ وسیلہ درست ہے۔ ہاں وسیلہ درست ہے، ہاں اللہ کے اچھے ناموں کا وسیلہ ہے، اپنے اعمال کا وسیلہ ہے۔ ارے بھائی قیامت کے دن میدان محشر میں جو آپ کی سفارش کریں گے، یہ وسیلہ ہوا کہ نہیں، آپ نے مانا کہ نہیں، یہ بتائیں پھر بات آگے بڑھاؤں میں۔ ہاں بولیے نا، چلیے مان لیتے ہیں کہ وسیلہ ہوا، کہ مان لیتے ہیں کہ نہیں ہے مانا، حدیث پہ ایمان ہے کہ نہیں وسیلہ قیامت کے دن؟ ٹھیک ہے، قیامت کے دن تو نبی بے شک سفارش کریں گے، بے شک ایک دم نبی ہی نہیں سفارش کریں گے، باقی عام لوگ جو آپ کے دوست احباب ہیں وہ بھی سب سفارش کریں گے آپ کو، آپ کا ایمان ہے نا۔ چلیے آگے بولیے۔ ہاں یہ آپ مانتے ہیں کہ وسیلے سے ہی ہم بخشے جائیں گے کل میدان محشر میں، اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارش نہیں کریں گے، تب تک ہمارے گناہوں کی معافی نہیں ملیں گی۔ اس پہ آپ کا ایمان ہے، اور اس وسیلے پہ ہاں سنیے، اب ایک میری بات سنیے، ابھی آپ بولے کہ ڈائریکٹ اللہ معاف نہیں کرے گا، ڈائریکٹ اللہ معاف کرنے پہ قادر ہے، اس پہ ایمان ہے ہمارا، لیکن وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، نہیں کریں گے تو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ میری بھی بات سن لیجیے، اگر وہ سفارش نہیں کریں گے تو اللہ معاف نہیں کرے گا، وہ سفارش نہیں کریں گے تو اللہ نہیں معاف کرے گا، ایک دم معاف کرے گا یار، لیکن کریں گے کیوں نہیں؟ وہ اللہ ہے، وہ ہم نے کیا انکار کیا؟ ارے بھائی ہم تو کہہ رہے ہیں کہ وہ قادر ہے اس پہ کہ وہ معاف کر سکتا ہے، ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں کریں گے تو نہیں معاف کرے گا، ہاں نہیں کریں گے، اپنے جو حدیث مبارکہ میں آئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے سب کی، اور آپ نے کہا بھی ہے جس نے میرے روزے کی زیارت کی میری شفاعت اس پہ واجب ہو گئی، تو سنیے میری بات سنیے، نبی کو اجازت دے گا تب نبی سفارش کریں گے، یہ بھی حدیث میں آیا ہے، قرآن میں آیا ہے، کیوں نہیں بات بتاتے آپ؟ پھر انکار کر رہے ہو آپ؟ انکار کرنے کی کہاں سی بات ہے؟ ہم اللہ کی انکار نہیں کرتے، نبی کی انکار نہیں کرتے، نبی بے شک سفارش کریں گے، سنیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے آپ انکار کر رہے ہو،
कहाँ इनकार कर रहे हैं, तो क्लियर कर रहे हैं। उनको सुनो, अल्लाह उनको इजाजत देगा, देगा, मर्जी के बिना वो शफाअत नहीं करेंगे। उनके मर्जी, अल्लाह की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, नहीं हिल सकता। सही बात, बिल्कुल सही। तो फिर अपने वसीला जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत वहाँ पे लगा दिया कि भाई आप ये सिफात कर देंगे तो हम तुम्हें माफ कर देंगे। माने कि नहीं माने इस बात को? नहीं, हम तो नहीं मानेंगे भाई। कहने का मतलब कि आप जो जैसे आप अभी कह रहे हैं, देखिए आखिरत की मिसाल मत दीजिए, आखिरत की मिसाल मत दीजिए मुझे, दुनिया की मिसाल। चलिए आखिरत का तो मानिए, आप पहले मानिए एक बात। आखिरत की तो आखिरत की तो मैं मान ही रहा हूँ भाई जी कि दुनिया में क्या एतराज है बताएं? दुनिया में बताइए हमको कहाँ वसीला है, दुनिया में वसीला बताएंगे ना। हाँ, तो वसीला दुनिया में हम बताएंगे। पहले ये बताएं कि दुनिया में जो दरगाह या मजार पर जाके उनके वसीले से दुआ करते हैं, इंदर शराब पे क्या नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। नबी ने तो दरगाह बनाने से उन्होंने कहा कि एक बिस्तर से ऊपर कब्र बनाओ ही मत। तो दरगाह एकदम हदीस दिखाएंगे हम आपको, दिखाएंगे मेरे पास। आप पूछे थे क्या? कहने का मतलब हम उलेमा नहीं हैं भाई जी, हम उलेमा नहीं हैं कि हमारे मुंह पे याद होता है। हम आपको बताएंगे, मेरे पास वो हदीस है, मैंने लिख रखा है कि नबी ने कहा है कि एक बिता से ऊंचा कब्र नहीं होना चाहिए। हाँ जी, नबी की हदीस है। बताएंगे तिरमिजी की हदीस है, तिरमिजी की हदीस है। अरे तिरमिजी नहीं, तिरमिजी। हाँ, तिरमिजी जो भी हो। देखिए भाई, वो कह तो रहा हूँ कि मैं उलेमा नहीं हूँ भाई जी, मैं तो क्लियर कहा ना कि मैं उलेमा नहीं हूँ, उलेमा बताते हैं ना। तो अब बताइए फिर ये मजार कहाँ से आया? जब वो एक बिता से ऊंचा कब्र बनाने करने का वो ये नहीं है, तो फिर ये पक्की कब्र बनाने का कहाँ से वसीला आ गया? तो नहीं किया, बताइए। हाँ, तो आप जो कह रहे हैं भैया कि एक बित्ता से कब्र ऊंची बनानी नहीं चाहिए, अब हम आपकी कैसे मान ले? आप तो हदीस पेश नहीं कर रहे हो कोई। हदीस तिरमिजी का हदीस है, मुझे कन्फर्म याद नहीं है कौन सी हदीस है, लेकिन है। मत दीजिए, हेलो मत दीजिए, मैं बात कर रहा हूँ आपसे, आप मत दीजिए। जो ऐसा करे कि भाई मजार पे जाए, उनके वसीले से दुआ करे, उसके ऊपर क्या हुक्म होगा आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से वो अच्छी बात नहीं है, सही नहीं है, मेरे हिसाब से सही नहीं है कब्रों पे जाके दुआ मांगना अपने लिए। मस्जिद, दुआ के लिए मस्जिद बनाई गई है। अल्लाह ने कहा कि मस्जिद के अंदर आके दुआ करो, कब्र पे जाके दुआ मत करो। कब्र तो मुर्दों के लिए बात करेंगे ना भाई, उसके लिए जाके दुआ करेंगे ना। गलत है, सुनिए, गलत है ना आपके नजदीक? एकदम गलत है, बिल्कुल गलत है। एक दलील दे दीजिए। तो दलील तो दे ही रहा हूँ ना, कब्र पे मांगेंगे कि हम मस्जिद में जाके मांगेंगे अल्लाह से? अरे आपके कहने से हो जाएगा, एक हदीस बता दीजिए। तो आपके कहने से हो जाएगा, मुझे आप हदीस दीजिए ना, मुझे आप हदीस दीजिए ना, मुझे हदीस दीजिए आप। कहाँ लिखा है, कहाँ नबी ने फरमाया? हजरत सुनिए ना, आप तो माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, तो आप हदीस दीजिए मुझे, कौन सी हदीस में नबी ने कहा? सुनिए, बोलिए। हाँ बोलिए। उनके वसीले से दुआ करना और उनके वसीले से दुआ मांगना नाजायज है या गलत है? आप एक दलील दे दीजिए मुझे। वसीले से दुआ मांगना गलत है तो दलील दे दीजिए। बात है तो फिर वही बात मेरे नजदीक सही नहीं है। मैं तो कह, आप दलील दीजिए कहाँ है? आपके नजदीक सही नहीं है, आपको जो है एक हदीस मुबारका का नाम लेना नहीं आता, तिरमिजी को तरमजी कहते हो। एक हदीस आपको भी याद नहीं है कि एक हदीस याद हो आपके दिफा में, और आपके नजदीक अच्छा सुनिए, अच्छा एक बात बताइए, नबी जो थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो नबी की वफात हो गई, नबी की वफात हुई तो 1010 हदीस नंबर है, उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु का हदीस है। तो उन्होंने वो नबी के वहाँ वसीला क्यों नहीं लगाया? वो चचा को क्यों ले गए? अच्छा को ले गए, वो चचा को क्यों ले गए? नबी को तो हमसे आपसे तो ज्यादा मानते थे, बहुत इज्जत करते थे, और नबी उनके लिए सब कुछ थे, तो उन्होंने वसीला वहाँ क्यों नहीं लगाया? 1010 बुखारी। अच्छा बुखारी जी, बुखारी। हाँ, तो कहाँ ले गए चचा को? काबे में ले गए दुआ कराने के लिए। क्या लेकर गए? बारिश नहीं हो रहा था तो दुआ कराने के लिए वो अपने चचा को क्यों ले गए काबे के पास? अच्छा, तो आपका कहने का मतलब है कि जब वो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दा फरमा गए तो उन्होंने उनके वसीले से दुआ नहीं करवाई, बल्कि उनके चचा को ले गए तो उनके वसीले से दुआ करवाई, यानी जिंदों का वसीला लेना जायज? जी जी जी, जिंदों का ही वसीला जायज है, जिंदों का ही वसीला जायज है। बाद वफात मैदान महशर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सिफारिश आपकी करेंगे, ये भी इनकार कर दीजिए। अरे
बाद वक्त हम भी जिंदा होंगे ना वहाँ भाई। हाँ तो आप भी जिंदा होंगे, लेकिन दुनिया से खत्म होके फिर जिंदा होंगे ना, दोबारा तो जिंदगी होगी। ये ठीक है, तो वो अलग दुनिया हो गई। जब अलग दुनिया हो गई। देख रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट कीजिए, कहने का मतलब ये दुनिया अलग है, ये तो मान लीजिए ये दुनिया अलग है, वो आखिरत की दुनिया है, तो वहाँ हम भी जिंदा होंगे, वो भी जिंदा होंगे, हमारी सिफारिश करेंगे बेशक। तो वहाँ पे आप जब जहाँ पे इनकार कर रहे हैं कि बाद वफात वसीला नहीं लेना चाहिए, तो वहाँ फिर बाद वफात आप वसीला क्यों ले रहे हैं? बाद वफात क्या, वहाँ हम भी जिंदा होंगे। अरे तो आप भी जिंदा होंगे, वो कैफियत अलग है, कौन सी जिंदगी वो अल्लाह को मालूम है, मुताशाबे में से है ना। आपने देखा ना, हमने देखा है, सिर्फ हमने सुना है, उतना ही मालूम है जितना हमें। भाई जी, तो जितना आपने सुना है, तब मेरे हिसाब से तो उमर फारूक रज़ियल्लाहु जब नहीं मांगे, सहाबा नहीं मांगे, तो हम क्यों मांगे? सहाबा नहीं क्यों मांगे? कहाँ कहाँ कहे? तो भी तो उनके वसीले से दुआ कर सकते थे ना वहाँ। तो चचा को क्यों ले गए? इसके लिए वो नहीं मांगे तो आप नहीं मांगेंगे, इसके लिए जो मांग रहे हैं। जब कहने का मतलब वो उमर फारूक रज़ियल्लाहु जो थे, वो नबी को हमसे कम मानने वाले थे क्या? हम ज्यादा मानने वाले हैं। सुनिए ना, तो वो नहीं मांगे, इसके लिए आप भी नहीं मांग रहे हैं। बेशक साहबा व नबी के रास्ते जो मांगे उसके ऊपर क्या हुक्म होगा? वही तो कह रहा हूँ, जो मांगे उसके ऊपर क्या हुक्म होगा? नबी ने नहीं मांगा तो हम भी नहीं मांगेंगे, नबी ने नहीं कहा हम भी नहीं करेंगे, नहीं नबी ने नहीं कहा हम नहीं करेंगे। नहीं, जो मांगे उस पर क्या हुक्म होगा, मैं ये पूछ रहा हूँ। अब हुक्म मैं नहीं जानता भाई जी, मैं हुक्म लगाने वाला कौन होता? मैंने मतलब आलिम नहीं हूँ भाई, मुफ्ती नहीं हूँ ना कि मैं आपके पास। सुनिए हजरत, मैं कह रहा हूँ, जब आपके पास इसकी नफी में कोई दलील नहीं है और उसूल इस्लाम का यही है। मेरी बात सुने, जब सहाबा नहीं मांगे तो हम क्यों मांगे? मेरी बात सुने, जब उसूल यही है कि भाई जिस चीज को अल्लाह और उसके रसूल ने हराम कर दिया वो हराम है, और जिस चीज को जायज कर दिया वो जायज है। अब इसके बाद अगर कोई चीज होता है कि न हदीस में है, न कुरान में, न नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म में है, न अल्लाह के फरमान में है, तो बिल्कुल वो दुरुस्त है। हाँ। जैसे कि सहाबा के दौर में बहुत सारी चीजें थी और आज बहुत सारी चीजें बढ़ गई हैं। एक मिनट बताइए, तब तो टीवी देखना भी दुरुस्त है। हाँ, कहाँ टीवी देखने का ना कहे क्यों? अरे नाच नबी के जमाने में टीवी नहीं था। नहीं, नाच गाने से इसे मना किया गया कि नहीं किया गया शरीयत में? तो नाच गाने से मना किया गया है ना, टीवी देखने से मना क्या किया गया है। नहीं, टीवी से क्या आता है? देखिए उतना देखिए घुमाने से नहीं होता है, मुझे बस घुमाने से नहीं, आपके उसूल से आप देखिए आप कहाँ थे, मुझे आप कहाँ लेके आ गए, आप मुझे बस इतना बता दीजिए हजरत कि ये उमर फारूक रज़ियल्लाहु को कहाँ ले जाकर हम रखें, उन्होंने क्यों नहीं मांगा? आपने जो उसूल बयान फरमाया कि सहाबा ने नहीं किया तो हम भी नहीं करेंगे। कैसे करेंगे? सहाबा से हम बढ़ के थोड़ी ना है। सहाबा जो है, सुनिए ना, सहाबा पैदल हज जाते थे, आप भी जाइए। कहाँ से कैसे पैदल जाते थे? अरे पैदल जाते थे, ऊँट से जाते थे। सहाबा तो अरब में थे, तो हम भी अरब में चले जाएंगे तो पैदल बेशक जाएंगे। ये तो मसला नहीं होता। अरब में जाके पैदल जाएंगे, यहाँ से हिंदुस्तान से पैदल नहीं जाएंगे। कैसे जाएंगे? मतलब अरब का ये काम जब सुविधा है, नबी ने क्या कहा? अल्लाह ने भी कहा है कि तुम्हारे पास सवारी है तो सवारी से आओ, ऐसा नहीं कहा। एक आयत पढ़िए, बताऊंगा मैं। देखिए मैं कह तो रहा हूँ कि हम लोग सुनते तो उतना जहन में नहीं रहता है, मोट मोट बात रहती है कि सुना। अब मुझे हदीस नंबर, सफा नंबर, मान लीजिए कि आयत नंबर उतना हम लोग को याद नहीं रहता है। अच्छा, आप हम लोग नहीं है हजरत, सुनके अहले हदीस बने हैं। सुनके अहले हदीस कैसे बने? सुनके क्या मतलब है? हमको तो आप तो कह रहे हैं हम जो सुनते हैं वो हमारे जहन में रहता है। जो सुनने के बाद में वो लोग आप कहते हो हम सुन के सुन्नी बने हैं, कितने कहते हैं कि हम सुन के सुन्नी बने हैं। ठीक है, आपने एक उसूल फिर नया उसूल बनाया कि भाई वो अरब में थे तो पैदल जाते थे, हम यहाँ है तो पैदल नहीं जाएंगे, तो अरब में ही सिर्फ शरीयत लागू है। आप मुझे घसीटे हैं, आप मुझे घसीट रहे हैं उधर। मैंने क्या कहा कि नबी को, आप ही ने कहा। सुनिए आप मेरी भी तो सुन लीजिए हजरत। कहने का मतलब जब सहाबा हमसे तो ज्यादा यकीनन हमसे ज्यादा मोहब्बत तो करते थे, बेशक हमसे ज्यादा मोहब्बत, अब उनसे ज्यादा मोहब्बत तो शायद हम लोग करेंगे ना करें तो अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन वो यकीनन सबसे ज्यादा मोहब्बत करते थे, हमारे ईमान है नबी से। जी। तो जब वो नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया से वफात कर गए तो उनका भी वो चचा को उनको ले जाने की जरूरत क्या थी? वो नबी थे, वो उनके वसीले से दुआ कर देते, हो जाता।
भाई आपने कहा कि भाई पैदल अरब में होते तो जाते। वो पैदल उधर छोड़ दीजिए, मुझे यहाँ वसीला वाली बात पे आइए। मेरी बात सुने, 2 मिनट। किस पे करेंगे? साहबा जिस पे किए हैं उसी पे करेंगे ना। वही तो हम कह रहे हैं कि साहबा पे फिर अमल करो ना। आप पैदल जाओ ना, गधे से जाओ, खच्चर से जाओ, ऊँट से जाओ यहाँ से। तो मैंने कहा हाँ, तो वसीला जिंदों का है, मुर्दों का नहीं है भाई जी। भाई हम कहीं हज करने कब जाओगे आप पैदल? इंशाल्लाह अल्लाह जब देगा उतना तो जाएंगे, इंशाल्लाह जाएंगे। क्यों जाओगे ना? इंशाल्लाह जाएंगे। अच्छा चलिए ठीक है, आपने मान लिया कि भाई अब हम पैदल ही जाएंगे हज करने, ऊँट से जाएंगे, गधे से या खच्चर से। ओ भाई वो देखिए, वो बात की बात है, जो बात हो रही उस पे ही रही है ना। कौन कहाँ जाएगा उसी पे। आपके उसूल से ही, आपके उसूल। अब वो तोतला बता रहा था मुझे, एक भी दलील वो नहीं दे पाया कि कहाँ लिखा कि वो फातिहा करना लिखा है, नबी ने ये बात कही है। वो मुझे उसको भाई जब आप कह रहे हो कहाँ लिखा है फातिहा करना या वसीले से दुआ मांगना, तो कहाँ नहीं लिखा? ये भी तो आप पे लागू होता है। मैंने तो नहीं देखा कि कहीं लिखा है। मेरे उलमा के नजदीक, मेरे उलमा ने तो ये कहीं नहीं बताया कि तुम उनके वसीले से दुआ करोगे। तो खुलने वाला है। आपके उलमा जब झूठ बोलते हैं दिन रात तो क्या बताएंगे आपको? अच्छा क्या गारंटी है कि आप सच बोलते हैं, ये बताइए। मेरे उलमा चलिए मान लेते हैं झूठ बोलते हैं, लेकिन आपकी क्या गारंटी कि आप सच बोलते हो? अभी बता रहा हूँ, सुनिए। आपके उलमा ने बताया, आपके उलमा ने बताया कहीं नहीं लिखा है, ठीक है, आपने मान लिया, आपने मान लिया, ठीक है, मान लिया ना कि आपके उलमा ने कहा कहीं नहीं लिखा है, तो आपने मान लिया। हाँ तो बताइए आप कहीं लिखा है तो बताएंगे ना। उलमा से कहीं नहीं लिखा है अगर कि जाना चाहिए या न जाना, तो आप ये तो कम से कम पूछ लेते कि कहीं लिखा है कि भाई गलत है या हराम है या बिदात है, ये तो कहीं लिखा होगा। ये तो कुछ नहीं पूछा आपने उनसे, तो खाली वो कह दिए कहीं नहीं लिखा है, तो आपने मान लिया। चलिए हमने मान लिया, लेकिन ये नहीं लिखा है तो चीज हम करें? अरे फिर अभी मैंने बताया ना कि जो चीज कुरान और हदीस अल्लाह उसके रसूल ने, अच्छा दीन मुकम्मल नबी पे हुआ नहीं हुआ, मुझे ये बात बताइए, दीन मुकम्मल नबी पे हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ ना। तो फिर जब दिन मुकम्मल हो गया, हर चीज नबी ने बता दिया, तो फिर उसमें बढ़ाना घटाना क्या है? हाँ कौन बढ़ा घटा रहा है? तो आप कह रहे हैं कि कहाँ लिखा है कि मत करो। हाँ तो हम तो कह तो रहे हैं कि बताइए भाई, नाजायज जो हराम अगर लिखा हो तो वही तो पूछ रहे हैं कि अगर करना होता तो नबी बता के जाते हैं ना कि करो, तो बताइए ना मुझे कहाँ करना लिखा है। वही तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे। बेशक नबी बताते हैं, नमाज पढ़ने का तरीका, हर चीज का तरीका बताया, तो ये फातिहा करने वाला तरीका तो बताए होंगे ना। फातिहा करने वाला तरीका, और हमारी जो बात चल रही है वसीले पे, आप फातिहा पे चले आए। अच्छा चलिए, हाँ वसीले पे वही रहेंगे, वसीले पे ही रहेंगे, चलिए साथ में लेके चलेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। हाँ अच्छा आपने कहा कहाँ लिखा है, हमसे आप पूछे, तो हमारा अमल है कि हम करते हैं, ठीक है। आप हमारा अमल नहीं है, आप एतराज कर रहे हैं, तो आप मुझे बता दें कि कहाँ लिखा हुआ है। और कहीं नहीं लिखा है फातिहा करना, इसलिए तो नहीं करते। बताना क्या है? हम इसका पहले बयान। अच्छा भाई जब इस्लाम में नहीं है तो ही नहीं करते। यार मेरी बात तो सुने, मेरी बात सुने, अब मैं समझा रहा हूँ आपको, सुने। जिस चीज को अल्लाह उसके रसूल ने हराम करार कर दिया या हलाल करार कर दिया, ठीक है, हम उस पे बिल्कुल कायम दायम। और जिस चीज को नाजायज हराम हलाल जायज कर दिया, हम उस पे कायम दायम। अब इसके बाद जो चीजें हैं कि जैसे कि अभी देखिए, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा का तरीका था कि मस्जिद में जब अजान होती थी तो माइक में नहीं होती थी, ठीक है, मतलब चढ़ के ऊंचाई पे और अजान देते थे ताकि लोगों तक सुने। अब यहाँ मामला आया कि भाई माइक लगाओ, दूर दूर तक जाए, तो अब हम कुरान और हदीस में माइक ढूंढे कि भाई माइक कहाँ लिखा हुआ है? नहीं ढूंढेंगे, है ना आपके उसूल से अगर देखा जाए, क्योंकि सहाबा ने कभी माइक में अजान नहीं किया। देखिए तो ये जो मामला है, मेरी बात सुने यार, पहले मेरी बात सुने। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद को सजाने से, मस्जिद को ज्यादा उसमें बनाने से मना किया है। मस्जिद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घास और भूसों की मस्जिद हुआ करती थी उनके जमाने में, और उसी तरह वो बनाते थे। आज लोग महला 2 महला चढ़ा रहे हैं जो है, और ये मीनार वगैरह ऊंची ऊंची बना रहे हैं। मेरी बात अब ये चले मीनार, रेती, सीमेंट और ये ईटा हम कुरान और हदीस में ढूंढें आपके उसूल के हिसाब से। देखिए जो चीज नबी, सुनिए मेरी बात, मस्जिद बनाना दुरुस्त है, ठीक है,
मस्जिद बनाना दुरुस्त है, जायज है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मस्जिद बनाओ, नमाज पढ़ो। लेकिन अब वो मस्जिद लोग ईंट से बनाते हैं, सीमेंट से बनाते हैं, उसमें जो बढ़ाया जो घटाया वो उसमें नहीं है, और ना ही उसकी जो है मामानियत की कोई दलील है। तो ये दुरुस्त है, ठीक है, समझ में आ गया। हाँ, फतेहाबाद मुझे बताइए कि ये आप कैसे है, ये बताइए। सुनो एक मिनट, आप अपने आलिम लोगों से थोड़ा पूछिए, तो थोड़ा कस के पूछिए, आप पूछा करिए, सवाल करिए तो अच्छे से किया करिए, दोनों पहलू लेकर। आप पहले हदीस बनकर ना सवाल करें, ना बरेलवी बनकर सवाल करें, एक वकील बनकर सवाल करें। हम वकील नहीं, हम पहले हम भी यही थे, ऐसा नहीं है, हम आज पहले। हाँ जी जी, हमको अच्छा नहीं लगा। नाम क्या है? हमारा नाम अल्ताफ है। अल्ताफ साहब, मेरा नंबर अब्दुल्ला भाई से ले लीजिए, और कभी भी कोई हो, कुछ मामला हो, तो आप हमें व्हाट्सएप से राब्ता कायम करें या फिर फोन कर लें, हम इंशाल्लाह जो है बात करेंगे आपसे। अभी थोड़ा मसरूफियत है। हाँ ठीक है, हाँ, ठीक, चलिए।